Okay. Now look at the board. Left hand. And two adjacent page number 62. Page number 62. Please open your books and look at your page number 62. When two adjacent sides and three angles are given at the bottom of the page, this point is given. Now, the example number 3, once again, we're discussing this example. Yesterday, only the half part we done it. So today we again start this, the quadrilateral MIST, here MI is equal to 3.5 centimeter and IS equal 6.5 centimeter and angle M is equal to 75 degree, angle I is equal to 105 degree and angle S is equal to 120 degree. So first if you draw this quadrilateral, first you draw a rough figure. सबसे पहले जब हम क्वाड्रिलेटरल करेंगे तो आप लोगों की कोशिश रहनी चाहिए, किसी का वीडियो नहीं दिख रहा है, ओनली यासिर आई एम लुकिंग. हाँ बेटे, तो फर्स्ट यू ड्रॉ अ रफ फिगर, एक रफ फिगर बनाइए जिससे आपको हेल्पफुल रहेगा. तो हमने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, कैसे भी बना दीजिए रफ में. दिस इज माय क्वाड्रिलेटरल एंड आई गिव द नेम. हम नेम लिखते हैं MIST. आई विल राइट हियर MIST. नाउ राइट MI is my 3.5 centimeter. This is 3.5 centimeter. IS, this is IS, 6.5 centimeter. And the angle M, yeah, this is my angle M, is 75 degree. 75 degree. एक second, just a minute. 75 degree. And this 3.5 centimeter. And angle I is 105 degree. Okay? तो हम लोग क्या करते हैं, 105 and angle S is 120 degree. Now मैं MI से स्टार्ट करता हूं. यूं कल हमने IS से स्टार्ट करता, आज MI से स्टार्ट करते हैं. First we draw a line segment of 3.5 centimeter. First, this is the first step. With the help of scale and pencil, you draw a line segment MI 3.5 centimeter. Put your geometry box and open the box. Put the pencil and draw a line segment of 3.5 centimeter. ये देखिए हमने 3.5 centimeter की एक line segment खींची मैंने. This is my MI. This is my 3.5 centimeter. Now, at the point M, the vertex M, that means M से हम 75 degree, you draw an angle of 75 degree. 75 degree का angle खींच सकते हैं? आता है सबको? सर, सबसे पहले आप क्या करेंगे? एक आर्क ड्रॉ करेंगे, कोई भी आर्क, जैसे ही हमने आर्क ड्रॉ करी, और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा. यहाँ से आप ये 60 डिग्री, this is my arc, this 60 degree, this is 60 degree, और इन दोनों का ये हमने बाइसेक्टर कर दिया तो ये 90 आ गया, और ये 90 आया. आप इसको खींचेंगे नहीं पूरा. अब ये this and this is 30 degree. इस 30 का बाइसेक्टर खींच दें. ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ दिस 30 डिग्री. तो ये आपका बाइसेक्टर यहाँ आ गया और हमने इसको जोड़ दिया तो ये हमारा 75 डिग्री बन गया. दिस इज माई एंगल 75 डिग्री. ओके, दिस इज माई 75 डिग्री. यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? No, sir. At this point, that means the point I, draw a 105 degree angle. 105 degree कैसे बनेगा बताइए? 105, 60 plus 45. 60 plus 45. तो 60 में 30 ऐड करेंगे तो 90, और 90 का
और 120 का हाफ कर देंगे तो 50 डिग्री एंगल आ जाएगा, इट कम्स 105 डिग्री एंगल। कर दें तो सबसे पहले ये देखिए, आप एक आर्क यहां से खींचिए, ये हमने आर्क खींची, और this angle be 60 degree, this angle be 120 degree, and this is the bisector, this is the bisector, और इस bisector को करा, और ये देखिए 30 डिग्री है, this 30 का हमने bisector खींचा यहाँ से और यहाँ, ये या, और इस वाले को हमने मिला दिया। This is my 105 degree angle, 105 degree, ये मेरा 105 degree angle आ गया, 105 degree. Now put the pencil in your compass and measurement of 6.5 centimeter, 6.5 centimeter measurement करिए, जल्दी से measurement करिए। Let's suppose this is my, इसी का डबल हो जाएगा लगभग, तो this is my 6.5 centimeter, ये देखिए मेरा ये है intersect, and this point is my S, this point is my S, और इस S, ये S हो गया, and this is 6.5 centimeter, and now put this point, draw a 120 degree angle, एक 120 degree angle खींचिए, तो यहाँ से एक आर्क खींचिए, ये देखिए यहाँ से हमने एक आर्क खींची, ये आर्क खींची, तो ये 60 और ये 60, and this is 120 degree, और ये इस पॉइंट को यहाँ मिलाइए और इस वाली को प्रोड्यूस कर दीजिए, ये देखिए ये इंटरसेक्ट कर देगी दोनों लाइन, दे इंटरसेक्ट एट द पॉइंट T, दिस इज माय पॉइंट T, दिस इज माय पॉइंट T। मैं थोड़ा सा I को यहाँ लिखता हूँ, आपको थोड़ा सा हटा देता हूँ, I is equal to 105 degree, and this point is my T, so this is 120 degree, I will write here 120 degree, and this is my 3.5 centimeter, this is 6.5 centimeter, this angle be 120 degree. So at the end we write, you write the step first, step second, step third, step four, step five, step 5. How many steps are there? 1, 2, 3, 4, 5, and the step number 6. Step number 6. Last में हम लिखेंगे hence MIST is a, what is a quadrilateral? Is a quadri. And that is our answer. Now, अब इसी को steps तो सबको आ गए होंगे लिखना। एक बार मैं orally I will discuss. First step is draw the measurement of 3.5 centimeter. That means MI is equal to 3.5 centimeter. Now, second step, at the point M, draw an angle of 75 degree. Draw an angle of 75 degree, and at the point I, draw an angle of 105 degree. हो गया? Step second complete हो जाएगा. Then step third, with the help of scale and compass, take the measurement of 6.5 centimeter. That means IS is equal to 6.5 centimeter, and put the pointer at the point I and draw an arc. It cuts at the point S. Therefore, IS is equal to 6.5 centimeter. This is my step number 3. Now come to the step number 4. At the point S, draw an angle of measurement 120 degree. आप बस draw कर दीजिए, हो गया काम खत्म. Now, at the point M, MT, produce, yeah, angle 75 degree at the point M, produce the line. They intersect angle 120 degree and angle 75 degree at the point T, intersect at the point T. Okay, now at the end, hence MIST is a quadrilateral.
ओके, एनी प्रॉब्लम? Yes. No, sir. कोई प्रॉब्लम? Sir. No, sir. किसी को कोई दिक्कत? यासिर, यासिर समझ में आया? No, sir. यासिर, Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? Yes, sir. समझ रहा बोलो है। बेटे, चले आगे, चलते यस हैं, सर दिक्कत चलते हैं। चलिए, ओपन द एक्सरसाइज 4.3 बेटे, जब मैं पढ़ाता हूँ उस समय थोड़ा सा वीडियो ऑन करिए कि आप लोगों से मेरा इंटरेक्शन होगा तो मैं ज्यादा बेहतर तरीके से आपको बता पाऊंगा। थोड़ा सा वीडियो अगर ओपन करेंगे, कैन आई इरेज दिस पार्ट? कैन आई इरेज? आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो हम इसको मिटा देते हैं। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि फर्स्ट यू ड्रॉ अ रफ डायग्राम। रफ डायग्राम जरूर बनाइए साइड में छोटा सा, जिससे वो आपको हेल्पफुल रहेगा, बहुत हेल्प करेगा। बुक में भी बनाया गया है, उसी तरीके से आप अपनी फेयर कॉपी में भी राइट साइड के कॉर्नर पे बनाइए, तो जिससे आप बहुत आसानी से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ कम टू द एक्सरसाइज 4.3। नाउ इन दिस एक्सरसाइज 4.3, which question I will start? कौन सा क्वेश्चन करूं स्टार्ट? Which question? 1, 2, 3, 4. Please tell me. There are 4 questions. फोर्थ कर दीजिए। सीधे 4 ही करें, हमेशा सरल ही पूछते हो। अरे थोड़ा हार्ड पूछो यार। Sir, second. सेकंड करें, चलिए सेकंड एंड फोर्थ we do it. I do it 2 questions and 2 you have done in your homework copy. The quadrilateral QUAD, this is short form of the quadrilateral PLAN, plan. The name of the quadrilateral is plan, and PL is given. PL is 4 centimeter. LA is 6.5 centimeter, and angle P is equal to 90 degree. Angle A is equal to 110 degree, and angle N is equal to 85 degree. Now first we draw a rough figure. मैं यहाँ रफ फिगर ड्रॉ करता हूँ, लेकिन फर्स्ट वी ड्रॉ अ रफ फिगर। फर्स्ट यू थिंक अबाउट दिस एंगल्स। 1 मिनट के लिए एंगल्स पे सोचते हैं। 90 डिग्री तो वेरी इजी, यू ड्रॉ द 90 डिग्री एंगल। 110 कैसे बनाओगे? 110 डिग्री, कैन यू टेल मी? With the help of compass you have do it. 110 कैसे बना सकते हो? कौन बताएगा? बना लिए सर प्रोटेक्टर से। प्रोटेक्टर से। विदाउट प्रोटेक्टर बन सकता है? जरा जोड़ के बताइए। Yes, sir. 60 में कितना ऐड करोगे? 60 में 50 का तो आपको मालूम नहीं है। 50 का नहीं मालूम है, तो आप प्रोटेक्टर से बना लेना। प्रोटेक्टर से यू डन this angle with the help of protector. Okay, and now 85 degree, 60 plus So 25 you cannot make 15 the सर। सर 15 90 में से 25 15 कैसे घटाओगे यार? 15 degree. कितने में से 60 में कितना ऐड करोगे? 25। 60 में 25 ऐड करें नहीं माल, इसको भी आप प्रोटेक्टर से बना लीजिएगा। जो आपके कंपास से नहीं बनते उसको आप प्रोटेक्टर से बना सकते हैं। तो नाउ फर्स्ट वी ड्रॉ फिगर। आई विल ड्रॉ, मैं इस साइड रफ फिगर बना रहा हूँ। ये क्वाड्रिलेटरल बन गया मेरा, एंड वी राइट द नेम PLAN. दिस इज माय PLAN, एंड माय PL इज 4 centimeter. My LA, this is my LA, 6.5 centimeter, and angle P, this is 90 degree. Angle A, where is my angle A? Angle A is 110 degree, and angle N, this is my angle N. Angle N is 85 degree. 85 degree. फिर से अगर देख लें, PL 90 है। PL 90 है ना? PLAN. Angle A is angle A नहीं है, सॉरी यार। Oh, L. This is LA. Sir, PL 4 centimeter है. Okay. LA is 6.5 centimeter.
6.5 सेंटीमीटर LA दिया है ना बेटे, LA is 6.5, PL is 4 सेंटीमीटर। देखिए इसमें एक थोड़ा सा आपको अगर इस एंगल L का पता लग जाए तो हम इस फिगर को बहुत आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ मेजरमेंट नहीं दिया है और यहाँ मेजरमेंट, and we know the sum of the quadrilateral is 360 degree. Then easily we find the angle L. First we find the angle L. इसमें हम angle L निकालते हैं, तो we know, we write here, my solution is अरे यार रहने दो भाई, ठीक है मैं कुछ समझा लेने दो, उसके बाद बोलिए। एंगल वी नो, एंगल P प्लस एंगल L प्लस एंगल A प्लस एंगल N is equal to 360 degree. The sum of the quadrilateral is 360 degree. Therefore, we put these value of angle P is 90 degree. Angle, we have find the angle L. Angle L is equal to angle A is 110 degree. 110 degree, and angle N is 85 degree, is equal to 360 degree. Now, therefore, angle L is equal to plus 105 plus 5, 8 plus 1, 9, 9 and 9, 18 का 8 carry 1, and 285 degree is equal to 360 degree, and therefore angle L is equal to 360 minus 285, 285. Therefore, angle L is equal to, what is the angle? 5. Sir, 75. 5. And it comes 15. 15 में से 8 गया? 1, 2, 3, 7. 4, 5, 6, 7, 8. Very good. 7. 75 degree. That means my angle L is 75 degree. And we easily draw. अब हमारे पास चारों एंगल पड़े हैं, लाइन सेगमेंट मिल गई, तो फर्स्ट वी ड्रॉ। अब बताइए कौन से, कहां से करें? यहां से कर दें कि यहां से कर दें? कहां से कर दें? PL से ही कर दें? PL से करते हैं। तो आप PL से, तो कहां, कौन सी जगह करूं? यहां दिख जाएगा ना? यहां तो कोई दिक्कत नहीं, यहां दिख जाएगा। तो फर्स्ट वी ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 4 सेंटीमीटर। हरी अप, ड्रॉ करिए 4 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट। ये मैंने लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी, एंड दिस इज माय 4 सेंटीमीटर, एंड आई गिव द नेम PL. And now at the point P, draw a right angle with the help of compass. Compass से draw करिए। तो ये देखिए हमने draw करा, एक arc बनाई, they intersect at the point this is my 60 degree, and this is my 120 degree, and this is 60, this is 60, and this is my 90. ये हमने 90 डिग्री का कर लिया। 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हमने कर दिया। अरे यार सा टेढ़ा हो गया है। मेरे पास कंपास नहीं है, आप लोगों के पास ऑलरेडी कंपास है, तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। एंड दिस इज माय आर्क। ओके, आप लोग हाथ से मत करिएगा, ठीक है? ओके सर। आप लोग हाथ से मत कर दीजिएगा, मेरे पास यहाँ इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ओनली आई एक्सप्लेनिंग विद द हेल्प of our fingers. Now, अब यहाँ से 75 डिग्री का एंगल बनाइए। 75 डिग्री में 16 प्लस 15, तो फर्स्ट वी ड्रॉ एन आर्क। हम एक ड्रॉ करते हैं आर्क। यहाँ से आप एक आर्क ड्रॉ करिए विद द हेल्प ऑफ कंपास, और हाँ कंपास से आपने बना दिया। और यहाँ से yeah, that is my 60, that is my 90, और 90 और ये 90 का ये बाइसेक्टर हो गया, और ये बाइसेक्टर, और इसका हमने बाइसेक्टर खींच दिया ये, एंड दिस इज माय 75 डिग्री। दिस इज माय 75 डिग्री, दिस इज माय 75 डिग्री। ओके, नाउ 75 डिग्री। नाउ मेजरमेंट, व्हाट इज द मेजरमेंट? एंगल कहाँ गया है? 6.5 सेंटीमीटर। तो दिस इज 4, तो दिस इज माय 6.5। आई विल कट हियर, यहाँ मैंने कट किया, ये मेरा 6.5 आ गया। दिस इज माय 6.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर।
and give the name angle. This is my सर A. कंपास में लेंगे ना 6.5. हाँ 6.5 कंपास से नहीं, स्केल से मेजरमेंट करो. हाँ कंपास के थ्रू मेजरमेंट कर दो और पॉइंटर को एल पे रखो और यहां से 6.5 का आर्क खींच दीजिए. यू ड्रॉ द आर्क ऑफ द 6.5 सेंटीमीटर एंड दे इंटरसेक्ट दिस एंगल एट द पॉइंट ए. पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट कर दिया. एंड नाउ एट द पॉइंट यू ड्रॉ एन एंगल ऑफ 110 डिग्री. 110 डिग्री का एंगल खींचिए यहां से. 110 डिग्री का with the help of प्रोटेक्टर. यहाँ प्रोटेक्टर से करोगे क्योंकि कंपास से आप बना सर नहीं सकते. 90 डिग्री पे काटेंगे कि सर 75 डिग्री पर? अरे ये 75 से काटेंगे ना. पॉइंट एल पॉइंट से पॉइंटर को रखिए पॉइंट एल पर 75 और 6.5 का आर्क खींच लिए. ये देखिए 6.5 है पॉइंट. तो ए आ गया पॉइंट. अब ए से हमें 110 का खींचना है. तो 110 का आप कैसे खींचोगे? यहां से दिस इज माय 100 प्रोटेक्टर से. ये देखिए 110 90 से थोड़ा सा ज्यादा जाएगा तो ये 90 होगा और यहां जाएगा ये देखिए ये ऐसे जाएगा. और दिस इज माय देखिएगा ये दिस इज माय एंगल 110 डिग्री. और 110 और इस एंगल को जैसे ही आप इस लाइन को प्रोड्यूस करेंगे दे इंटरसेक्ट द पॉइंट. विच पॉइंट? एन. दिस इज माय एन. एंड नाउ यू मेजरमेंट. इस एंगल को मेजरमेंट करेंगे ऑलरेडी 85 डिग्री आएगा. दिस एंगल कम्स 85 डिग्री. इसको आप मेजरमेंट करके देखिए 85 आना चाहिए. With the help of compass, you have measurement the angle n. It comes 85. It comes 85. 75 नहीं आना, 85 ही आएगा. With the hand of protector. 85. Because the sum of the quadrilateral is 360 degree, and all the three angles we done it, and the remaining angle be left, and this angle be 85 degree. Therefore, must here the angle comes 85 degree. यहाँ आना ही चाहिए. अगर आपका नहीं आता तो ये कहीं मेजरमेंट में गलती है. ओके. और लास्ट में आएगा बिल्कुल आएगा. आना है. और at the end you have write the steps. Step first, step second. कोशिश करिए 5 स्टेप में हो जाए आपका आंसर. स्टेप थर्ड, step 4 and step 5. And this is my step 5. I will write hands PLAN. Plan. My plan is PLAN is a quadrilateral. Sir. हाँ बेटे बोलो. That is our answer. Statement है. हाँ बोलो बेटे. Yes, sir. हाँ बोलो. Please tell me. सर एक बार और फिर से करा दीजिए. फिर समझाते हैं. देखिए हमें रफ से कितना आसानी हो जाती है. अगर हम रफ फिगर नहीं बनाते तो शायद हम इसको करने में महसूस दिक्कत होती है. We have comes as a problem. So first you draw a rough figure. This is my rough figure and this angle is not there. ये एंगल हमारे पास नहीं था. जैसे ही हमने ड्रॉ किया फिगर को तो एंगल P तो मिल जा रहा है, लेकिन PN की हमारे पास लाइन सेगमेंट की हमारे पास क्या नहीं है, मेजरमेंट नहीं है. एंड सिमिलरली इफ वी ड्रॉ दिस एंगल इज नॉट देयर, यहां भी एंगल नहीं है तो हमें एंगल L भी नहीं मालूम है जिससे कि हम 6.5 सेंटीमीटर का आर्क खींच सकें. और यहां भी हमें पॉइंट N का पता नहीं है. तो इसमें सबसे बेस्ट है कि 3 एंगल्स आर गिवन and the fourth unknown angles. First you find the fourth unknown angle. हमने unknown angles जो था L उसको हमने find कर दिया. क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि we know the sum of the quadrilateral is 360 degree and 3 angles are given and we add all 3 angles and subtract 360 minus 285. Angle X is 75 comes. Angle L हमारा निकल गया. अब हमारा ये जैसे ही angle L आ गया
अब हम बहुत आसानी से क्वाड्रिलेटरल को डू इट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फर्स्ट वी ड्रॉ द PL of 4 centimeter. At the point we draw the 90-degree angle with the help of compass, and now then at the point L we draw the angle 75-degree with the help of compass. Now my another step, take the measurement of AL, that means LA or AL of 6.5 centimeter, and put the pointer of the compass at the point L and draw an arc of 6.5 centimeter. It intersects this angle at the point A. At the point A. Then again at the point A, draw an angle of 110 degree, and this angle 90 produce, and they intersect this point at the point N. They intersect N. Hence PLAN is a quadrilateral. कोई दिक्कत? खुशी समझ में आया? No, sir. है? Yes, sir. कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं बोले जा रहा हूँ आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है बेटे? Yes, sir. ओके ओके। आदित्य बेटे साइलेंट प्लीज। आदित्य आया? नितेश, हिमांशु, यस सर। श्वेतांजलि, बोलो बेटे जल्दी से। विपुल, ओके 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 ओके। सक्षम नहीं बोलेगा। ओके ओके। महावीर आ गया समझ में? नहीं। ओके नाउ तो कैन आई इरेज दिस पार्ट? यू हैव डन इट? यस सर। और मैं पुट कर रहा हूँ बिकॉज टाइम भी 7 and 8 minutes भी left. So we done this exercise. Tomorrow you complete this exercise. First you write the homework for the tomorrow. Complete the exercise 4.3 in your homework copy, and all the examples of this exercise also done in your homework copy. Okay? सभी लोग अपना homework लिख लीजिए कल के लिए. How many students are there? 53. Now बेटे चलते हैं. Question number 4. The fourth part of this question. बेटे आवाज नहीं. Don't make a noise. Don't disturb. देखिए अगर आप बोलेंगे चिल्लाएंगे तो मैथ्स में आपको दिक्कत होगी. तो मेरी आपसे गुजारिश है, my humble request, if you sitting in the class, जब क्लास में सिटिंग कर रहे हैं तो अपने पेरेंट्स को बोल दीजिए प्लीज उन लोगों से कृपया ये कह दीजिए कि हमारे आसपास से हट जाइए, इस समय हम क्लास ले लें. दैट इज द इम्पॉर्टेंट चीज. ये आप लोगों के लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू है एंड द नेक्स्ट सेशन you go in the secondary section, and secondary section is the very important section for your life. आप लोगों की लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. तो 8 में आप बहुत अच्छे से समझेंगे तो आपका भविष्य बहुत उज्जवल होगा. तो आप लोग, मैं चाहूंगा कि आप लोग बिल्कुल साइलेंट रहें. मेरी ये ख्वाहिश है, दिली इच्छा है. रेक्टेंगल OKAY. ड्रॉ ए रेक्टेंगल. Can you tell me the definition of rectangle? कौन बता सकता है? जल्दी से बताइए. कोई बता सकता है रेक्टेंगल की डेफिनेशन? कौन बताएगा बेटे? 3-sided polygon. अरे बेटे बताओ. Rectangle, a parallelogram with a right angle. That तरीके. Opposite sides are parallel And equal. First angle is and the equal right angle. And And the each angle is the right angle. right angle. They are called rectangle. That means OK is 7 Diagonals centimeter. are equal. That means this is also a 7 centimeter. K is a 5 centimeter. तो this is also a 5 centimeter. तो यह बहुत आसान हो गया. सबसे पहले हम OK बनाते हैं. तो फिर draw 7 centimeter. हमने 7 centimeter की लेंथ बना दी. ये देखिए आपके सामने. इसका नाम नेम लिख दिया O and K. And draw a 90-degree angle with the help of compass. ये देखो हमने कंपास से करा. This is 60. This is 60. और इसका हमारा आ गया, इसका बाइसेक्टर खींचा. Yeah, this is my bisector, and this my angle is 90 degree. This is my 90 degree angle. Okay. This angle is 90 degree. Yes, sir. ये 90 डिग्री कर दिया हमने.
एंड सिमिलरली Yes, sir. के से भी Yes, आप sir. यहाँ से भी 90 डिग्री ऊपर करिए फौरन। ये अब तो मेरा तो केवल फिंगर है, आप तो विद द हेल्प ऑफ कंपास। एंड नाउ दिस इज माय 60, दिस इज माय 60, और इसका बाइसेक्टर खींचेंगे तो यहाँ आ जाएगा। एंड दिस इज माय 90 degree. And now this point, this is also a 90 degree. And now at the point, यहाँ से K 5 centimeter open करिए with the help of scale से 5 centimeter का, and this is my arc of 5 centimeter, and this point is A 5 centimeter, and similarly draw an arc at the point of O, and this is also a 5 centimeter, and this point is my Y, and join this point A to Y को join कर दीजिए, and this is my rectangle, and this is 7 centimeter, this is 7 centimeter. Hence at the end you write at the steps, first, second, third, fourth, fifth. My fifth step is hence OKAY is a rectangle. तो आई होप मैंने आप लोगों को डिस्कस किया है, एक्सप्लेन किया है, शायद आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। Yes, sir. आया है? कोई दिक्कत? Yes, sir. If any problem, then tomorrow you ask me how many time be left? 4 to 3 and 4 minutes be left. तो 8 minutes. किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दिस इज अ वेरी सिंपल, मैंने आपको पहले ही बोला था कि क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी है, और आपने इजी ही पूछ लिया। सेकंड जिसने पूछा था तो ही इज अ गुड स्टूडेंट, लेकिन उसने भी क्या कहते हैं, अल्टप्पू नहीं कहते हैं, अपने हिसाब से बोल दिया। लेकिन सेकंड इज द गुड क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, and all are the question are good for the examination point of view because a few questions are there. So now tomorrow your homework is exercise 4.3 completed, and example of this exercise are also, and tomorrow we're discussing when 3 sides and 2 included angles are given. Kal hum, that means next day we are discussing the next point with 3 sides and 2 included angles are given. Bete महावीर सुन रहे हो? महावीर मेरी बात सुन रहे हो? बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि उनको शायद इंग्लिश में तो दिक्कत नहीं हो रही है ना? थोड़ा सा इंग्लिश बोल रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा हम नहीं बोल रहे हैं इंग्लिश में, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? क्या हो गया, कट कैसे गया यार? हाँ, कोई दिक्कत? सर आप टेस्ट नहीं लेंगे? टेस्ट लेंगे बेटे, पहले पढ़ लें। क्यों पढ़ना ठीक नहीं लग रहा है? अच्छा, गिरी, वेयर इज गिरी? ओह, अभिषेक गिरी, आदर्श बेटे, his name is आदर्श अभिषेक गिरी। प्लीज ओपन योर वीडियो। अभिषेक गिरी नहीं, जरा अपना वीडियो ओपन करो यार, थोड़ा शक्ल देखें यार। You are a good student. अक्षत, ये कौन लगा देता है भाई? क्या लगा देते हैं अमन, कौन सा चेहरा लगाते हैं? अभिषेक फ्री फायर से लगाने से बेटे पढ़ाई करना जरूरी है, पढ़ने वाला ही इंसान दुनिया में आगे बढ़ता है, और सबसे आसान काम है पढ़ाई मेरे हिसाब से। तो ओके, so today we complete our this period, and tomorrow we start the page number 65 when 3 sides and 2 included angles are given. So tomorrow we're discussing this point, and today we complete our class. So can I close this meeting? Yes, sir. Yes, sir. Thank you all of you. Okay, and I hope my homework, my given homework, all of you have completed. मैं आप लोगों से इसी आशा के साथ कि आप लोग मेरा दिया हुआ होमवर्क जरूर करेंगे एक अच्छे बच्चे होने के नाते। ओके, थैंक यू Thank you, sir. थैंक यू